Okay, let us start the program. Jai Bhim and good evening, everybody. Uh, I am Jagesh Somkwar. Let me introduce myself क्योंकि जो एंकर होता है ना he has to do this business every time, no? To introduce himself first, no? Himself or herself. So I am Jagesh Somkwar. I am GM Production in ONGC Mumbai, and also I am chairman of All India SC/ST Employees Welfare Association Mumbai branch. So uh, we have our team with us, office bearers, and under All India SC/ST Employees Welfare Association, we are organizing series of host of programs, host of webinars on the various issues like education, like Baba Sahib's concepts and philosophy and ideology, and also Dhamma, the core teachings of Dhamma. Yeah, so we organize so many programs for since last August. We have been organizing every week, every Saturday and Sundays programs for children, for women, for civil services examinations, and study abroad, etc., etc., and also simultaneously on Atrocity Act, then Baba Sahib's ideology, and Baba Sahib's role in nation building. So we are really privileged to have with us today one of the very famous name in this field, Ambedkarite world, Dr. Professor Pradeep Aglawe sir. Sir Jai Bhim, welcome to this Jai Bhim, program. Jai Bhim, Jai Bhim. So with a round of applause, let us welcome Aglawe sir. सब लोग तालियां बजाइए. उन्होंने अपने वेबिनार के लिए समय Thank you. निकाला और वो इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए हैं. उनको बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि उनको हम बुलाएंगे. वो आज समय, वो घड़ी आ चुकी है. आज उन बाबा साहब, जैसे आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है सोशल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. तो सोशल के साथ साथ हम ये चाहेंगे डॉक्टर साहब से, हम गुजारिश करना चाहेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी भी साथ में उसमें ऐड करिएगा, और साथ में पॉलिटिकल, क्योंकि आज का जो सर्कमस्टांसेस है उसमें भी ये बाबा साहब का पॉलिटिकल विजन क्या था, इसको भी थोड़ा अगर टच करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट. सो वंस अगेन अगला सर का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं इस वेबिनार में. ओएनजीसी के ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर के थ्रू ये सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है. और इसमें सर्वप्रथम मैं डॉक्टर साहब का थोड़ा परिचय मैं देना चाहूँगा कि उनके क्या माइलस्टोन्स है. जैसे आपको पता है कि डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर प्रोफेसर एंड हेड है डॉक्टर अंबेडकर थॉट, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, वो हेड है चेयर के. ठीक है. उनका जो एजुकेशन है बेसिकली वो MA इन सोशियोलॉजी, द इकोनॉमिक्स एंड अंबेडकर थॉट्स, ओके, ट्रिपल MA, देन MPhil, देन LLB, देन PhD, देन PGTD. ठीक है. ये उनका साहब का एजुकेशन है. सो यार, teaching experience of about 32 years and research experience in 29 years. So far, Dr. Aglawe sir guided MA, then MPhil, then PhD students, and 50 students they have been awarded PhD under his guidance. No, so it's really great. I mean, great contribution to this teaching profession by Dr. Aglawe sir. So there are so many students who are conducting research work under guidance of Dr. Aglawe sir. Uh, then total academic awards received by Aglawe sir uh, in sociology, then socio-economic problems, then social thoughts, then Ambedkar thought, Dalit movement, and Buddhism. Overseas lectures, he conducted so many lectures around the globe, and prominent among them were I must share with you Dr. Ambedkar, and his philosophy, organized by Pakistan Institute of Professional Sciences Social Forum, Karachi, Pakistan, on 14th April, birth anniversary of Dr. Basa Ambedkar in 2007.
सो डॉक्टर साहब ने वो कीनोट एड्रेस वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेजेंट उन्होंने किया था, कीनोट एड्रेस दिया था, रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन इंटर ये टॉपिक के ऊपर। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी जो डॉक्टर साहब है, जहाँ पे बाबा साहब का एजुकेशन हुआ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी डॉक्टर अगलावे जी ने उनका लेक्चर हुआ है, पेपर भी प्रेजेंट किया है, और द टॉपिक वाज इम्पैक्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑन डॉक्टर अंबेडकर थॉट्स। बाबा साहब के जो विचार, जो उनकी जो विचारधारा बनी है, जो उनका पूरी पर्सनालिटी बनी है, तो उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी का क्या रोल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे उन्होंने लेक्चर दिया और प्रेजेंट किया। देन एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी जब मार्क हुआ 100 years of बाबा साहेब अम्बेडकर एंट्री टू दैट प्रीमियर इंस्टीट्यूट on 23rd July 2016, it was organized by BAMSEP International Network। तो वहाँ पर डॉक्टर अगलेवे जी ने वर्ल्ड इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे उन्होंने LSE में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में, उन्होंने अपना कीनोट एड्रेस दिया था। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन री इमेजिनिंग रिलीजन, caste and social justice in South Asia. It was held from 28th of April to May 1st, 2017. Second annual international conference on unfinished legacy of डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये जो ब्रांडेस यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वहाँ पे भी साहब का, आप समझ सकते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, देन ब्रांडिस यूनिवर्सिटी, इसमें डॉक्टर अगलेवे जी ने जो है वो अपना कीनोट एड्रेस और कुछ रिसर्च पेपर भी वहाँ पे उन्होंने पढ़े हैं। और इनके बुक्स के बारे में बताओ, अभी तक टोटल ये एक चीज़ और बताऊंगा कि रिसर्च पेपर अभी तक नेशनल लेवल पे उनके 10 पब्लिश हो चुके हैं और इंटरनेशनल पे लेवल पे 3 हो चुके हैं। टोटल बुक्स जो अभी तक साहब ने ऑथर की है, टोटल 30 बुक्स है, उसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये टोटल 30 बुक्स का जो है वो उसमें से कुछ प्रोमिनेंट अगर है तो वो हम चाहेंगे, अगर साहब उसके ऊपर कुछ हमको जो जो ऑडियंस है उनको अगर इसकी जानकारी देना चाहेंगे तो वो दैट वुड बी ग्रेट। और एक था, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट, डॉक्टर अंबेडकर ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बुक उन्होंने एडिट किए है डॉक्टर अंबेडकर चेयर नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, ये 2014 में। देन रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर बाबा अम्बेडकर टुडे एंड टुमारो, then he published so many articles, more than 700 articles। and डॉक्टर अगलावी साहब, टोटल जो उनके अवार्ड्स है अगर उनकी बात करूं तो वो मोर देन 20 है अभी तक। उसमें से बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटिंग अवार्ड है, देन बेस्ट इंटेलेक्चुअल आर्टिकल राइटिंग अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड्स है उसमें। हम चाहते हैं कि सर को जो है ना, अभी जो नेक्स्ट है भारत सरकार का एक पद्म पुरस्कार भी उनको, ही डिजर्व्स दैट, और उनको मिलना चाहिए या। तो साथियों, ये हमारे आज के जो फैकल्टी है, लर्नेड फैकल्टी, जैसे मैंने कहा डॉक्टर आगलावे सर, तो उनका ये ब्रीफ में जो उनका ये परिचय था, वी आर रियली प्रिविलेज, और रियली क्या कहे, शब्द नहीं है साहब का धन्यवाद अदा करने के लिए, साधुवाद व्यक्त करने के लिए कि उन्होंने हमारी ये गुजारिश मान्य कर इस कार्यक्रम में वो ज्वाइन हुए और जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हमको बताएंगे। सर, देर इज नो टाइम लिमिट, यू कैन गो अप टू Okay, okay. as per your wish, there is no problem, but I request you kindly speak in Hindi and English, Hindi and English mix, yeah, Sure. because many of the participants Okay, okay. they have problem with English also, no? So थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि सबको समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर योर लेक्चर, फिर हम लोग हाँ, थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी ले लेंगे अगर किसी को surely, surely. लेना है। Good thing. यस सर, Sure. यस सर। So participants, so once again today we have with us डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर, और हम लोग अभी जो है बाबा साहब का जो फिलॉसफी है, चाहे वो सोशियो
इकोनॉमिक फिलॉसफी है या पॉलिटिकल फिलॉसफी या जो भी आप सब करना चाहेंगे वो जो हम लोग डॉक्टर साहब से सुनने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड to Dr. Pradeep Aglave sir to continue his to start his today's lecture, please. Go ahead, sir. Jai Bhim and Namo Buddhaya to everybody. Jai Bhim, Jai Bhim. Thank you, Mr. Jagesh Somkar, for giving me chance on the today's topic. Dear friends, my topic is very important. We know Ambedkaric movement. We are aware about the thought of Dr. Ambedkar. But we want to know what is the social philosophy of Dr. Ambedkar. What is the gist of social philosophy of Dr. Ambedkar? And that is why today's topic is very important. We know that Dr. Ambedkar was a great philosopher in the 20th century. When we read the books of Dr. Ambedkar, when we study detail of his books, we know that economy and political philosophy is quite different than other philosophers. Today I'm going to talk about the social philosophy of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar's philosophy was totally, what we can say, his philosophy was totally depend on humanism. जिसे हम मराठी हिंदी में कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो दर्शन है वो पूर्णतः मानवतावादी है. डॉक्टर अंबेडकर जी के कई सारे विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है. उन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि वह वास्तव में समाज दर्शन के एक प्रख्यात विद्वान है. इट मीन्स ही वॉज अ ग्रेट what we can say intellectual of philosopher. No doubt he was a philosopher, but he was also a student of philosophy. And he was very important in the field of philosophy. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दर्शन का उदय कैसे हुआ, यदि सवाल किसी ने मुझे पूछा तो मैं बताऊंगा कि बाबा साहब के दर्शन का जो उदय है वह मानव के अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों में हुआ. यह बात बहुत महत्वपूर्ण है. उनकी दार्शनिक प्रज्ञा एवं भावना लोह जंजीरों से जकड़ी हुई मानवता को देख न सकी. अन्याय अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष जोड़ने ही उनके समाज दर्शन की आधारशिलाएं दृढ़ हुई. इससे स्पष्ट है
बाबा साहब एक निर्जन स्थान पर बैठे हैं, वो समाज के बारे में सोच रहे हैं और फिर उन्होंने अपने दर्शन को प्रस्तुत किया, ऐसा नहीं हुआ है। बाबा साहब का दर्शन जो निर्माण हुआ उनके संघर्ष से निर्माण हुआ। उन्होंने इस देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक आदि जो विपरीत परिस्थिति देखी और उन परिस्थिति में इस भारत देश का आम आदमी और विशेषता अछूत, आदिवासी और शूद्र समाज के जो लोग हैं वो अमानवीय जीवन जी रहे हैं, उन पर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ये सब बाबा साहब ने देखा। केवल देखा ही नहीं, बाबा साहब को इस प्रकार के कई अनुभव आए और इसीलिए इन अनुभवों से उनका जो हृदय है वो विचलित हुआ। उनको लगा कि ये अमानवीयता है। एक मानव समूह ने दूसरे मानवों के संदर्भ में जो अन्याय अत्याचार किए उस और उनमें वो जी रहे, नरक या अमानवीय परिस्थिति जी रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वे जिम्मेदार हैं जो शोषण कर रहे हैं या शोषण करते थे। और इसीलिए बाबा साहब ने अपने दर्शन की जो आधारशिलाएं या जो विचार रखे वे बहुत महत्वपूर्ण है। उनके दर्शन में क्या दिखाई देता है या उनका दर्शन किस मूल्यों पर आधारित है, तो यह हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि मानव का सम्मान, स्वतंत्रता, समता, न्याय, एकता, भ्रातृत्व और प्रजातंत्र के मूल्यों पर या उन सिद्धांतों पर उनका जो समाज दर्शन है वो आधारित है। और उनका दर्शन किसका विरोधी है? समाज में जो शौच होता है, जातिवाद है, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके विरोध में बाबा साहब का समाज दर्शन खड़ा हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों में या उनके दर्शन में एक सामान्य कड़ी दिखाई देती है जिसे हम सोशल ह्यूमैनिज्म या सामाजिक मानवतावाद कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह सामाजिक मानवतावाद के पुरोधा थे। उनका जो समाज दर्शन है, जैसा कि अभी जागे सोमपुर जी ने कहा कि बाबा साहब का समाज दर्शन तो जानना है, उसके साथ साथ उनका राजनीतिक और आर्थिक दर्शन भी क्या है। तो बाबा साहब का जो समाज दर्शन है, इस समाज दर्शन में आर्थिक एवं राजनीतिक जो विचार है, जो दर्शन है, वो भी सम्मिलित है। तो बाबा साहब का जो समाज दर्शन है वो दर्शन किसका दर्शन है? सपोज somebody asked me, what is the social philosophy of Dr. Ambedkar? So I can give answer in only one word. Dr. Ambedkar's social philosophy is nothing but it is a social humanism. बाबा साहब का जो समाज दर्शन है
ये समाज दर्शन क्या है? सामाजिक मानवतावाद है। अर्थात सामाजिक मानवतावाद यही बाबा साहब अंबेडकर के दर्शन का दूसरा नाम है। तो इसलिए, और इतना ही नहीं, तो उनके इसे हम जनतांत्रिक मानवतावाद और डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म भी कह सकते हैं। उनके दर्शन का जो संबंध है वो संबंध समस्त मानवता से है। यही सार्वभौमिक दृष्टिकोण किसी दर्शन की मूल विशेषता होती है। When we talk about the social humanism, then we found that his social humanism or his social philosophy is based on liberty, equality, and fraternity. These three principles are basic of Dr. Ambedkar's social philosophy. It means when we talk about social philosophy of Dr. Ambedkar, then we have to tell about liberty, equality, and fraternity. मानवीय समाज की दृढ़ता एवं एकता के लिए यह मूल्य आवश्यक है। उनके दर्शन का किसके लिए महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर? बाबा साहब अंबेडकर जी के दर्शन का प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्व है। It means his philosophy is important for every person, और मुख्यतः उनके लिए जो लोग सदियों से कुचले गए हो और जिनका शोषण होता रहा है, उन लोगों के लिए उनका दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश यह भी देखा गया है कि बहुत से लोग स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व के नाम पर अशिक्षित एवं गरीब जनता को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन मूल्यों को अपने जीवन में बहुत महत्व दिया, और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने इन मूल्यों के अनुसार खुद को ढाला और इन मूल्यों को भारत के संविधान की धारा में भी सम्मिलित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब बाबा साहब के समाज दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं, तब एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि बाबा साहब के काल में और आज हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सभी तरफ है। व्यापार एवं औद्योगिक प्रसार के पश्चात पश्चिम में उदारवादी समाज में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रचलित हुआ। और व्यक्तिवाद दृष्टिकोण क्या है कि व्यक्ति समाज की उत्पत्ति में सर्वोपरि है और समाज व्यक्ति की समृद्धि एवं कल्याण का साधन मात्र है। पश्चिमी
उदारवादी समाज का जो व्यक्तिवाद है, यह अतिशयवादी नैतिक भावना से ओतप्रोत है। व्यक्तिवाद की एक मान्यता है कि व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, वह अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, क्योंकि उसमें बुद्धि और शक्ति होती है। लेकिन ये जो मान्यता है, ये मान्यता ध्यान में रखिए, और एक जो विश्वास है कि व्यक्ति ही अपना भला कर सकता है, ये जो बात है, ये बात सत्य नहीं उतरा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिवाद की जो धारणा थी, या जो मान्यता थी, या जो विश्वास था कि व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है और वह स्वयं अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन यह सत्य में नहीं उतरा। क्या हुआ? समाज में जो चतुर एवं चालाक लोग थे, उन्होंने अज्ञानी और जो अनपढ़ व्यक्तियों को दास्तान की जंजीरों में जकड़ लिया, और फलस्वरूप अन्याय, अत्याचार का बोलबाला होने लगा। यानी जो व्यक्तिवाद की मान्यता थी कि व्यक्ति स्वयं कल्याण करता है, लेकिन व्यक्तिवाद या अतिशयवादी जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनकी जो व्यक्तिवाद की और एक मान्यता जो है कि व्यक्ति सदैव प्रत्येक परिस्थिति में सही से निर्णय कर सकता है। बाबा साहब ये कहते हैं कि ये तथ्य जो है यह संदेहास्पद है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए सही निर्णय की अपेक्षा करता है और स्वार्थ के लिए गलत निर्णय लेता है। तो यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के कारण स्वार्थवाद और शोषण निर्माण हुआ, और जन कल्याण की जो भावना थी वो जागृत न हो सकी। इसलिए हम देखते हैं कि बाद में व्यक्तिवाद के इस दृष्टिकोण को, इस विचारधारा को विरोध हुआ, क्योंकि इस अतिशयवादी व्यक्तिवाद का व्यावहारिक रूप से समाज ने विरोध किया था। विश्व में अनेक आर्थिक एवं राजनीतिक कुछ घटनाएं हुई, जिन घटनाओं के कारण व्यक्तिवाद का जो जड़ है, उस जड़ को ही हिला दिया। इस प्रकार की घटनाओं से सामाजिक पक्ष को बल मिला और व्यक्तियों को सामाजिक स्तरों से मिलकर अपनी आवश्यकता अनुभव हुई, और परंपरागत जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगा। इन सब बातों से समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। मार्क्सवाद ने सामाजिक उद्देश्य की महत्ता पर अधिक बल दिया, जैसा कि व्यक्तिवाद दृष्टिकोण में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, और समाजवादी जो दृष्टिकोण है, समाजवादी जो विचारधारा है, उसमें समाज को महत्व दिया जाता है। तो मार्क्स ने समाज को, सामाजिक उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया, उसने समाज को प्रधानता दी और व्यक्ति के उस स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जिसे पाश्चात्य दार्शनिकों ने माना था, कि जिसको
जिस व्यक्तिवाद को पाश्चात्य दार्शनिक मानते हैं, उसको मार्क्स ने नकार दिया और सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक हित को ही उन्होंने महत्व दिया। मार्क्स ने एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात की। मार्क्स की बात पर चर्चा करने के पहले मैं और एक बात से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि बुद्ध यह पहले विश्व के पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने दुख की चर्चा की। देखिए, जब तक डॉक्टर ये बताता नहीं कि आपको रोग हुआ है, पेशेंट को कि आपको रोग हुआ है, जब तक डॉक्टर को पता नहीं चलता तब तक वो उस पर इलाज नहीं कर सकता। बुद्ध ने सबसे पहले दुख की चर्चा, उन्होंने कहा कि संसार में, दुनिया में दुख है, यह सत्य है। उन्होंने उनके जो 4 अरिय सत्य है उसमें कहा पहला दुख है। उसी प्रकार मार्क्स ने यह कहा कि समाज में दुख है और समाज में जो दुख है उसका कारण क्या बताया? उसका कारण उन्हें बताया निजी संपत्ति का अधिकार यही संसार के दुख का कारण है। इसलिए इस अधिकार का अंत करने से ही सामाजिक एकता स्थापित हो सकती है और मानवीय कल्याण उसके द्वारा हो सकता है। इस प्रकार का विचार मार्क्स ने बताया और मार्क्सवाद ने भौतिक मूल्यों को प्रधानता दी लेकिन धार्मिक मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया। मार्क्सवाद ने अपने दर्शन में सामाजिक उद्देश्य को ही या समाज को ही सर्वोपरि माना था और व्यक्तिवाद में व्यक्ति को सर्वोपरि माना था। और मार्क्स ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उचित स्थान नहीं दिया। यानी ये दोनों जो विचारधारा या दोनों ये दृष्टिकोण है, व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद, एक दूसरे के विरुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसके संदर्भ में क्या क्या ये या उनके समाज दर्शन में क्या इस पर चर्चा करने के पहले मार्क्सवाद और व्यक्तिवाद इन्होंने समाज में या दुनिया के सामने कौन सी कठिनाइयां पैदा की उस पर चर्चा करना आवश्यक है। व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के संघर्ष ने मानव समाज के समक्ष अनेक सामाजिक एवं बौद्धिक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी थी। प्रत्येक विचारधारा अपनी मान्यता को सत्य मानती थी। कोई भी एक दूसरे के सभी आने का प्रयत्न नहीं करते थे। इस प्रकार का विरोधी विचारधारा विश्व में थी। अब जब इस पार्श्व का भारतीय समाज के बारे में हम सोचते हैं तब पता चलता है कि भारतीय समाज में एक ऐसी संगठित विचारधारा की आवश्यकता थी कि जो व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद, इन दोनों जो एकांगी जो दृष्टिकोण को सुधार कर नई समाज की स्थापना कर सके। भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो की परिस्थिति है उससे हम सब अवगत हैं। ये जो इन देश की जो समाज व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है, जो जाति व्यवस्था पर आधारित है, इसमें क्या हुआ? इसमें शोषण, अन्याय, अत्याचार, अमानविकता थी। और किन लोगों के साथ? अछूत, आदिवासी और जो
शूद्र लोग थे, उन लोगों के साथ बहुत ही बर्बरता से और मानवीयता पूर्वक व्यवहार किया जाता था। तो इस पार्श्वभूमि में या इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को एक नए समाज की स्थापना करना आवश्यक था। ऐसे समाज की स्थापना कि जिस 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 समाज का आधार जो है, मूलाधार, वह स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व हो और उसकी कार्यविधि जो है वो प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक हो, एवं उसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए था। तो बाबा साहब आंबेडकर जी का जो दर्शन है, उस दर्शन के संदर्भ में जब हम सोचते हैं, अध्ययन करते हैं, तब यह पता चलता है कि बाबा साहब आंबेडकर के दर्शन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को भी विशेष महत्व है। इसलिए उनका समाज दर्शन एकांगी या अतिशयवादी नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर का जो दर्शन है वो किस परिस्थिति से सामने आया, इसकी चर्चा की, क्योंकि उनके दर्शन की उत्पत्ति विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में से हुई। जब उन्होंने अछूत एवं शूद्रों की दुख भरी गाथाओं का अध्ययन किया और उनकी अमानवीय स्थिति का अवलोकन किया, तो उनका मानव हृदय विचलित हुआ। अनेक प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों ने इन वर्गों का जो जीवन दुखमय किया था, उनका जीवित रहना मुश्किल हुआ था। इन सब परिस्थिति में ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के दर्शन का उद्भव हुआ। इनसे ही उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों का प्रस्फुटन एवं वैज्ञानिक ढंग से विकास हुआ। भारत में कुछ ऐसी सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां रही जिनके कारण करोड़ों मनुष्य अमानवीय व्यवहार, अन्याय एवं अत्याचार के शिकार बने थे। अधिकांश सुधारकों ने उनके समस्याओं की उपेक्षा की और उन्होंने उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अथक परिश्रम से मानव अधिकारों को सामान्य लोगों के लिए सुलभ बनाया। प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जैन धर्म का स्थान महत्वपूर्ण था, किंतु बुद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का जो आंदोलन है वो अधिक सक्रिय नहीं रहा। बुद्ध धर्म का जो उद्देश्य उस समय के
भारतीय समाज में फैली बुराई और सामाजिक अन्याय का अंत करना था। बुद्ध ने वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था के बंधनों को तोड़ा और समस्त मानवता के लिए समता का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने तत्कालीन वर्णाश्रम पर आधारित वैदिक समाज व्यवस्था का अव्यावहारिक एवं अनैतिक सिद्ध किया और उन सभी लोगों को ललकारा जो अत्याचार एवं शोषण के मुखिया थे। बुद्ध ने मानव अधिकारों की समता पर अधिक बल दिया था। उन्होंने उन बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयत्न किए जिनसे समाज उस वक्त भी दुखी था और आज भी है। बुद्ध का जो आंदोलन ये केवल निषेधात्मक नहीं था। बुद्ध का आंदोलन ये सकारात्मक था। उन्होंने एक नए समाज का निर्माण किया जिसमें सभी मनुष्य समता एवं स्वतंत्रता के अधिकारी थे। यद्यपि एक नए समाज की स्थापना करने में बुद्ध को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, किंतु उन्होंने अपना साहस नहीं खोया था और समस्त सामाजिक एवं धार्मिक अन्याय के प्रति जनचेतना जागृत की थी। संक्षेप में बुद्ध ने नए समाज की स्थापना की और उन सामाजिक एवं आध्यात्मिक सुधारों का आविर्भाव किया जिनकी उस समय में सभी वर्गों को आवश्यकता थी और आज भी है। इसका अर्थ यह है कि बुद्ध ने ऐसा दर्शन या विचारधारा लोगों के सामने रखी और उस दर्शन और विचारधारा को प्रसार लोगों में किया जिससे एक समता पर आधारित एक नए समाज का निर्माण हो। तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही गहन अध्ययन किया था। उनके विचारों पर बुद्ध के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव था। और एक बात बाबा साहब ने खुद अपने व्याख्यान में को दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो पर बाबा साहब का भाषण हुआ था और इस भाषण में बाबा साहब ने अपने सोशल फिलॉसफी के बारे में जो वक्तव्य किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाबा साहब क्या कहते हैं? पॉजिटिवली my social philosophy may be said to be enshrined in 3 words: liberty, fraternity, and equality. Let no one, however, say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. I have not. My philosophy has roots in religion, not in political science. I have derived them from the teachings
of my master, the Buddha. बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने समाज दर्शन के संदर्भ में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य किया। वे कहते हैं कि मेरा जो समाज दर्शन है, यह समाज दर्शन 3 शब्दों में सम्मिलित है, या 3 शब्दों में सम्मिलित है। वो कौन सी शब्द? स्वतंत्र, और भ्रातृत्व। लेकिन किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने फ्रांस की राज्य क्रांति से यह तत्व उधार लिया। बाहर सब कहते आई हैव नॉट, मैंने नहीं किया। वो कहते कि मैंने मेरे दर्शन की जो जड़ें है, मेरे दर्शन की जो रूट्स है, वो धर्म में है, न कि राजनीतिक शास्त्र में है। और बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जो गुरु गौतम बुद्ध, इनके शिक्षाओं से मैंने ये तत्व लिए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बाबा साहब का जो समाज दर्शन है, यह समाज दर्शन बुद्ध के विचारों पर आधारित है। इसका अर्थ क्या है? इट मीन्स वी कैनॉट सेपरेट डॉक्टर अंबेडकर सोशल फिलॉसफी फ्रॉम द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से हम बाबा साहब का जो समाज दर्शन है वो अलग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन में स्वतंत्रता एवं समता का एक अच्छा समन्वय मिलता है। उनका कहना यह है कि अनियंत्रित स्वतंत्रता को समता, अनियंत्रित स्वतंत्रता समता को नष्ट कर देती है और निरपेक्ष समता में स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अतः दोनों का प्रयोग एक दूसरों के समन्वय और साम्य पर निर्भर है। इससे स्पष्ट होता है कि जो स्वतंत्रता और समता जो है, यह परस्पर निर्भर है, एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं और स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं और न कि समता को। ये दोनों जो तत्व है वो परस्पर संबंधित है। कानून का बाबा साहब के दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु स्वतंत्रता तथा समता की सुरक्षा के लिए यह कानून है, न कि उसे उनकी गारंटी के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह मत था कि कानून के जीवन के मौलिक मूल्यों के गारंटी नहीं कर सकते हैं, क्यों? उनकी गारंटी हमें भातृत्व की जो भावना है उससे मिलती है। इसका अर्थ यह है कि कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून हमें स्वतंत्रता और समता की गारंटी नहीं देता। कानून आवश्यक है, हालांकि कानून समता लाने के लिए या स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, गारंटी नहीं देता। यह बात बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कही है। और गारंटी कौन देता है? तो जो फ्रैटर्निटी का जो मूल्य है, यानी फ्रैटर्निटी जो मूल्य है, जिसको हम भ्रातृत्व या भाईचारा कहते हैं, भ्रातृत्व को बाबा साहब ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। यदि हम लोगों में भ्रातृत्व की भावना नहीं है
तो कितने ही कानून हो, उसका ऊपर कोई असर नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने भातृत्व भावना, भातृत्व को महत्व दिया। और बाबा साहब भी कहते हैं कि भ्रातृत्व भावना मानवता का दुश्मन है। फ्रैटर्निटी इज द अनदर नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। और बाबा कहते हैं यदि मानवता का दूसरा नाम यदि बताना हो, वी हैव टू टेक another humanity, then Dr. Ambedkar said that is only Buddhism. Buddhism ही मानवता का दूसरा नाम है, कि भावना से ओतप्रोत भरा है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्धिज्म यह मानव भाईचारा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इट इज नथिंग दैन फ्रैटर्निटी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रातृत्व का कितना महत्व है। बाबा साहब यह कहते हैं कि यह व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक प्रगति का मार्ग दिखाता है। जैसा हमने व्यक्तिवाद और समाजवाद, ये दो विचारधारा देखी। एक में व्यक्तिवाद को महत्व, दूसरे में समाज को महत्व दिया। लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं ये दोनों, व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, ये अलग नहीं है। समाज से व्यक्ति को दूर नहीं कर सकते और व्यक्ति को समाज से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति समाज में पैदा होता है, समाज में जीता है, समाज में मरता है। इसलिए व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो समाज में होता है। इसलिए समाज और व्यक्ति दोनों को महत्व दिया गया है। और इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्धिज्म जो है, ये बुद्धिज्म या बुद्धिज्म में जो विचारधारा है, जो मूल्य है, ये मूल्य व्यक्तिगत प्रगति और सामाजिक प्रगति दोनों का मार्ग दिखाता है और मानव बुद्धि को वातावरण की साधन शक्तियों के साथ जोड़कर मानव कल्याण के जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानता है, जिसे बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा है। तो ये जो बाबा साहब का दर्शन है, ये दर्शन बुद्ध के विचारधाराओं से या उनकी दर्शन के अलग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय सामाजिक इतिहास को बदलने के लिए एक नई रूपरेखा भारतीय संविधान एवं बुद्ध धम्म के रूप में हमारे सामने रखी है। बाबा साहब ने संविधान तथा बुद्ध धम्म में उन सिद्धांतों को महत्व दिया जिनके आधार पर नई समाज का निर्माण हो। भारतीय संविधान और बुद्ध धम्म या भारतीय संविधान का बुद्ध धम्म के आधार पर विश्लेषण यदि किया तो ये कह सकते हैं कि बुद्ध का जो दर्शन है
बुद्ध ने जो ने समाज के निर्माण के लिए मूल्य बताए हैं, वे मूल्य भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। और इसलिए भारतीय संविधान तथा बुद्ध धर्म के सिद्धांत परस्पर मिलते जुलते हैं। उनमें कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं है। दोनों ही ऐसे समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है जिसका आधार न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व हो। इन सिद्धांतों के लिए बुद्ध ने प्राचीन काल में कड़ा संघर्ष किया था। वही मूल्य आज भारतीय संविधान के प्रियम्बल में अभिलेख के रूप में दिखाई देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन सिद्धांतों के लिए बुद्ध ने प्राचीन समय में कड़ा संघर्ष किया और आज भारतीय संविधान का प्रियम्बल इन्हीं सिद्धांतों का अभिलेख है। ये बहुत बड़ी बात है। संविधान में समयानुसार संशोधन होगा, यह बात सही है, लेकिन संविधान में जो मूल्य है, जिन मूल्यों के आधार पर संविधान है, वे मूल्य जो है, these values are universal. These values are human. These are human values. These are the value of democracy. These are the basic value of the democracy. And that is why these values are very important. और इसलिए भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल एक अभिलेख है मानवीय मूल्यों के संदर्भ में, अभिलेख है। बुद्ध ने जो मूल्य भारतीय समाज में रोजाने का या स्थापित करने का प्रयास किया, वही बात आधुनिक काल में संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। इसीलिए संविधान एवं बुद्ध धर्म दोनों ही जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है। दोनों ही शांतिमय परिवर्तन पर बल देते हैं। दोनों ही भारतीय संस्कृति के उत्तम मूल्यों की सुरक्षा करते हैं। दोनों ही मानवतावादी दृष्टिकोण के पोषक हैं और उन तत्वों के नियंत्रण पर बल देते हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व पर आधारित समाज की स्थापना करने में बाधक है। ज्ञान एवं शिक्षा का मार्ग सबके लिए खुला है। सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं। संविधान तथा बुद्ध धर्म उन उपेक्षित वर्गों की सुरक्षा करते हैं जिन्हें अछूत, आदिवासी और शूद्र कहते हैं। अतः दोनों ही एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को लाने की अभिरुचि रखते हैं जो समता, न्याय, स्वतंत्रता
और भ्रातृत्व भाव पर आधारित हो। यह वह सामाजिक व्यवस्था है जिसका निषेध वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म ने किया था और सदियों से करते रहे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दर्शन में धर्म एवं कानून का सुंदर समन्वय मिलता है, ताकि नया सामाजिक इतिहास, जनतंत्र, समाजवाद, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद तथा विज्ञान एवं धर्म के साम्य पर निर्धारित हो। दोनों मानवतावादी मूल्यों के लिए प्रेरित करते हैं। संपूर्ण दृष्टि से यदि इन मूल्यों की और देखा जाए तो वे आधुनिक भारत की दिशा को स्पष्ट करते हैं और उनमें सभी शोषित, पीड़ित, वंचित मानवों का कल्याण यह निहित है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें सर्वोच्च सिद्धांत दिए हैं जो स्पष्टता, संविधान तथा बुद्ध धर्म में समाहित है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर उनको व्यावहारिक रूप दे, सामाजिक इतिहास का ढंग से निर्माण करें, जैसा डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी समाज दर्शन में बताया है। राष्ट्र की एकता तथा सम्मान कायम रखते हुए नई सामाजिक क्रांति लाना हमारा ध्येय होना चाहिए। इस क्रांति को ऐसा आदर्श रूप आप सभी को देना है कि आने वाली जो संतानों में साहस एवं विश्वास बढ़े, वह युग कभी न आए जिसमें अछूत, आदिवासी और शूद्र हो। डॉक्टर बाबा साहब जी ने अपने महान गुरु बुद्ध के समान समस्त कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों का साहसपूर्ण मुकाबला किया और उन्हीं के समान अपने समाज दर्शन के व्यावहारिक पहलू पर अत्यधिक बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिस समाज दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत किया, वह सदैव भारतीय शोषित तथा पीड़ित जनता के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करता रहेगा। इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का समाज दर्शन हम सभी लोगों के लिए, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनके लिए प्रकाश स्तंभ का काम करें। इतना ही नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का समाज दर्शन केवल भारतीय लोगों तक सीमित नहीं है। यह समाज दर्शन कैसा है? यूनिवर्सल है। यह समाज दर्शन कैसा है? मानवीय है, ह्यूमैनिज्म पर आधारित है। यह समाज दर्शन विज्ञान पर आधारित है। और इसलिए बाबा साहब का जो समाज दर्शन है, यह समाज दर्शन जिन मूल्यों पर आधारित है, उन मूल्यों को जीवित रखकर उन मूल्यों पर आधारित नई समाज रचना बनाना, ताकि कई बार
अन्याय, अत्याचार नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी। और बाबा साहब का जो समाज दर्शन है, ये विश्व को एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह समस्त मानवीय इतिहास में प्रगतिशील क्रांति और प्रबल संकेत करता है। तो इस प्रकार बाबा साहब का जो समाज दर्शन है, यह समाज दर्शन है। बाबा साहब का समाज दर्शन के संदर्भ में चर्चा करते हुए, जैसा कि जागेश्वर सर जी ने कहा था कि बाबा साहब का राजनीतिक और आर्थिक जो दर्शन है वो भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि बाबा साहब का जो आर्थिक और राजनीतिक जो दर्शन वो भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। आप सभी को पता है कि बाबा साहब जी ने संविधान सभा को एक मेमोरेंडम मार्च 1947 में सादर किया था। वो मेमोरेंडम क्या है? केवल 5-20 पेजेस का वो मेमोरेंडम नहीं था। वो मेमोरेंडम आधुनिक भारत की राज्य घटना कैसी होनी चाहिए और उस राज्य घटना में लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों को कैसा सुरक्षित रखना है, इस संदर्भ में विस्तार से लिखा है। बाबा साहब ने एक बात स्पष्ट रूप से कही कि वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इससे राजनीतिक समता आएगी। बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? दैट वाज द क्वेश्चन बिफोर डॉक्टर अंबेडकर। क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता है, यह व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधक हो सकता है। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर भारी हो सकता है। और इसलिए बाबा साहब ने केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक समता पर भी बल दिया था। क्योंकि आर्थिक समता के लिए बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश का जो आर्थिक धोरण है वो आर्थिक धोरण समाजवादी होना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही कि ये समाजवादी कैसा, कि ये देश का जो आर्थिक धोरण है यह संविधान में ही सम्मिलित होगा। किसी की भी सरकार आएगी लेकिन वो इस देश का जो आर्थिक धोरण वो बदल नहीं सकेगा। और इसलिए बाबा साहब ने स्टेट मैनिटी, स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद, यानी राज्य का समाजवाद, और यह समाजवाद भारत संविधान में ही रहेगा। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, आज का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने राज्य समाजवाद में जो बात कही है वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर डिटेल लिखा है। वे कहते हैं कि कृषि जो है, कृषि क्षेत्र जो है, ये कृषि क्षेत्र या ये जो कृषि जमीन है, यह राज्य का उद्योग होना चाहिए।
यानी कृषि पर या कृषि क्षेत्र पर एक व्यक्ति का या किसी विशिष्ट लोगों का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, यह राज्य का अधिकार होना चाहिए। और कृषि क्षेत्र जो है, आज हम देखते हैं कि कृषि किसानों के कई सवाल निर्माण हुए हैं और आज किसानों को खेती करना बहुत ही कठिन हो रहा है। तो बाबा साहब ने कृषि क्षेत्र के संदर्भ में उस मेमोरेंडम में जो बात लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र जो है वो राज्य का उद्योग होना चाहिए। और ये बात बाबा साहब ने किया। और जो संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति का जो वितरण है ये समान होना चाहिए। किसी एक वर्ग का यदि संपत्ति पर अधिकार होता है तो उससे कैपिटलिज्म निर्माण होता है, भांडवलवाद निर्माण होता है, पूंजीवाद निर्माण होता है। तो बाबा साहब ने इस अर्थव्यवस्था को विरोध किया। बाबा साहब ये कहते हैं कि देश के महत्वपूर्ण जो की इंडस्ट्रीज है, ये की इंडस्ट्रीज ये स्टेट के यानी राष्ट्र के होना चाहिए। इस पर किसी व्यक्तिगत या किसी उद्योगपति की या किसी विशिष्ट घराने की ही सत्ता नहीं होना चाहिए। ये जो मूलभूत जो उद्योग हैं उन पर केवल और केवल राज्य का ही अधिकार होना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उनके आर्थिक दर्शन में दिखाई देती है। और उनका जो राजनीतिक जो दर्शन है, हमें तो मालूम है कि ही वॉज ग्रेट डेमोक्रेटिक, वे लोकतंत्र के हिमायती थे, पुरोधा थे। बाबा साहब ने कानून को भी महत्व दिया, लेकिन कानून को महत्व देते हुए ये कहा कि कानून से ही बदल नहीं होगा, कानून तो महत्वपूर्ण है ही। समाज में इस प्रकार की व्यवस्था यानी निर्माण करना चाहिए जो प्रजातंत्र के लिए अनुकूल हो। बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। बाबा साहब का यह धम्म परिवर्तन देता है। तो बाबा साहब जो बुद्ध धम्म को अपनाया वो किस लिए, क्या मकसद था बाबा साहब का? बाबा साहब का यह मकसद था, क्या था कि अभी हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, इस देश में प्रजातंत्र आया है, इस देश में संविधान है, संविधान के आधार पर इस देश में प्रजातंत्र भरेगा। लेकिन इस देश में सामाजिक विषमता है, इस देश में भाईचारा नहीं है, जिसको हम भ्रातृत्व कहते हैं। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जहां विषमता ही है, व्यक्तियों में विषमता, जातियों के आधार पर विषमता ही निर्माण की गई थी। इस देश का मूल्य क्या था? एक समय में इस देश का, इस देश के धर्म व्यवस्था का, इस देश के समाज व्यवस्था का एक ही मूल्य था और वो था विषमता, इनइक्वालिटी। आज हमारे देश का क्या मूल्य है? इक्वालिटी, समता। और भारतीय संविधान के प्रियम्बल में भी इक्वालिटी की चर्चा की है। तो ये इक्वालिटी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता पर महत्व दिया और इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में जिस देश में, जिस व्यवस्था में इनइक्वालिटी, विषमता थी, उसी देश में बाबा साहब ने इक्वालिटी का मूल्य दिया। और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं इस देश में प्रजातंत्र तो आया है, संविधान के माध्यम से आया है, स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण हुई है, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए उसी प्रकार की समाज व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए।
और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म को अपनाया, क्योंकि बुद्ध धम्म की जो विचारधारा है, धम्म के जो मूल्य है, ये लोकतंत्र के अनुकूल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्माण करने के अनुकूल है। और इसीलिए बाबा साहब कहते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे कि मैं सारा भारत बुद्ध में करेंगे, पूरा भारत बुद्ध में करूंगा, इस प्रकार की अपेक्षा बाबा साहब रखते थे। वह किस लिए? इसलिए ये देश का जो लोकतंत्र जो निर्माण हुआ है, उसका और मजबूत करने के लिए उसी प्रकार की समाज व्यवस्था निर्माण होना आवश्यक है, और वह बुद्धिज्म के द्वारा, बुद्ध धम्म के द्वारा ही निर्माण हो सकता है। इस प्रकार का बाबा साहब का विश्वास था। और आज हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, या लोकतंत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि या ये सफर पैदा होता है हमारे मन में, क्या हमारा लोकतंत्र सफल हुआ है? उत्तर आपको देना है। अर्थात इसका उत्तर जो है, लोकतंत्र है हमारे देश में, सफल नहीं हुआ। संविधान भी है, संविधान में दिशा में कानून है, लेकिन उस संविधान के अनुकूल, एक प्रजातंत्र व्यवस्था के अनुकूल यहां की जो मानसिकता, यहां की जो सोच बदलना थी, वो सोच नहीं बदली। पर वह सोच बदलने के लिए बुद्ध धम्म की आवश्यकता है। बुद्ध धम्म की जो विचारधारा है, लोग बुद्ध धम्म का नाम लो या न लो, लेकिन ये जो मूल्य व्यवस्था है, जो लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस के मूल्य पर आधारित है, वो महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार बाबा साहब का जो दर्शन है, वो दर्शन, फिर वो समाज दर्शन हो, उनका राजनीतिक दर्शन हो या उनका आर्थिक दर्शन हो, ये इन बेसिक जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज पर ही खड़ा है। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, और हमारा जो दर्शन है, बाबा साहब का जो दर्शन है, उसके मुताबिक नई व्यवस्था का निर्माण करना, ये किसका काम है? जो इस मूल्यों के विरोधी है, वो लोग कतई इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये हमारा कर्तव्य है, और दृष्टि से हम लोगों ने सोचना चाहिए। ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं, आप लोगों ने मेरा भाषण सुना, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और विशेषतः जागे सोमकोर जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो आज का जो विषय है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सामाजिक दर्शन, जो आपने बहुत सही बात कही है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है इसको, कि बाबा साहब का जो सामाजिक जो दर्शन है, वो और कुछ नहीं है, ये मानवता का दर्शन है। और ये मानवता का दर्शन सारे विश्व को प्रकाशमान करेगा, अगर बाबा साहब को मानते हैं, उनके गुरु को हम मानते हैं, तथागत बुद्ध का। क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुद्धिज्म से लिए है, और सारे दुनिया ने उसको माना है। चाहे वो फ्रेंच की क्रांति हो, चाहे भारतीय संविधान हो, या और देश के संविधान भारत के संविधान के अनुरूप जो बने हैं। तो we are really thankful to you, sir, for enlightening us on this topic, social philosophy of Thank you, sir. Dr. Baba Saheb Ambedkar. We will take 2-3 questions. Okay, अगर कुछ surely. चीजें, हाँ, If anybody yeah. want to ask any question, so yes. this must ask. जी। व्यूअर्स कोई है जिसको कुछ पूछना है? आज का जो टॉपिक है, इट शुड बी टॉपिक स्पेसिफिक। आज का जो विषय है उसी के ऊपर होना चाहिए। और कोई ऐसा भी चलेगा, सवाल चलेगा। अच्छा, ओके। आई एम रेडी। ओके, बाबा साहब के बारे में कुछ पूछना है उनका। जैसे सर ने बताया अभी, वो आर्थिक जो बाबा साहब की जो दर्शन है, उसके बारे में भी सर ने थोड़ा सा बात करी, राज्य समाजवाद की बात कही है ना। तो उसके बारे में भी हम देख रहे हैं कि सारा बड़े
मतलब क्या कहेंगे, चिंतित है। जो बाबा साहब का जो दर्शन है, उसका उस पे काम होना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। लोग अलग विचारधारा को अपनाने लगे हैं, तो उसके बारे में अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो दे आर वेलकम। यस, कमान कमान कमान। अगर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट मीन्स कि सबको सब सब क्लियर है, फर्दर कुछ नहीं पूछना है। सर एक चीज ये पूछ रहा था, ये हाँ जो बोलिए बोलिए सर। ये जो हाँ, जादव साहब का ये कायक है, पहले उनको पूछने देते, बाद में मैं पूछूंगा। हाँ ठीक। प्रोफेसर डॉक्टर अंबादास जाधव साहब, आप जानते हैं, मुंबई में। हाँ यस। हाँ या हाँ, तो उनको हम वो कुछ पूछना चाहते हैं। जाधव साहब गोएड, हाँ विचारा। अ, मेरा क्वेश्चन जो है तो स्लाइटली डिफरेंट. अच्छा Since Baba Saheb Ambedkar was very ardent follower of Buddhism, जी। and it is told, I mean, I don't know whether it's a reality or what, Baba Saheb was not ready to accept the Sangha. That Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, up to it was okay, but not Sangham Saranam Gacchami. So, would you please throw some light on this one? Okay, okay. Thank you, Mr. Jadhav, for asking me question. जादव साहब ने एक सवाल पूछा है जो आज के विषय के संदर्भ में नहीं है, चलेगा या लेकिन बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पहले दिन होटल में बाबा साहब जहां रुके थे वहां चर्चा हुई थी इस सवाल में, और बाबा साहब ने चंद्रमणि और बाकी भिक्षुओं को बताया कि मैं संघ की शरण नहीं लूंगा, धम्म और बुद्ध और धम्मों की लूंगा, लेकिन संघ की नहीं लूंगा। तो इसका कारण यह था कि बाबा साहब अलग अलग जगह गए और उन्होंने जो संघ का रूप देखा, भिक्षुओं की जो परिस्थिति देखी, तो उनको लगा कि यह बराबर नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने चंद्रमणि जी को कहा कि मैं संघ की शरण नहीं लूंगा। तो सब आश्चर्य, मैंने सबको धक्का लगा कि यदि धम्म दीक्षा लेनी हो तो तीन रत्न है जिसको हम त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध धम्म और संघ, इन तीनों को शरण जाना आवश्यक है, उसका अनुसरण करना आवश्यक है। तो तब गुडबली जी जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम के आयोजक थे, वामन राव गोडबले जी, उन्होंने ये बताया कि बुद्ध ने जो संघ की व्याख्या की, सुपटिपन्नो सावक संघ की जो व्याख्या की, उस संघ को, न कि आज के संघ को मैं शरण जाता हूं। तो इस प्रकार इन्हें बुद्ध का धम्म और बुद्ध ने जिस संघ की स्थापना की थी, सुपटिपन्नो सावक संघों की जो स्थापना की थी, तो और जो संघ विद्वान और अपने विचार यानी बुद्ध के विचारों पर चलने वाला था, ऐसे संघ को मैं शरण जाता हूं। और बाद में फिर बाबा साहब के ख्याल में बाद और बाबा साहब ने वो मान लिया। तो यह उनका अपना जो डॉक्टर अंबादास जाधव जी का सवाल ये था। इस तरह बाकी जाधव साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन माय मोबाइल, आल्सो यू कैन कांटेक्ट विद मी ऑन एनी टाइम। हाँ, जाधव साहब, ये डॉक्टर साहब ने अभी बात कही है ना, तो ये वामन राव गोडबोले जी की जो पुस्तक है उसमें भी ये रेफरेंस आया है, और मैं सर का नंबर आपसे शेयर करता हूँ, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू हिम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, है ठीक है जादव साहब, ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ क्या बोल रहे जादव सर?
No, I retired from Mumbai University. Now I am in Silvassa. ओके, आप रिटायर, ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी। Yeah, ठीक Mumbai है, University I retired, and now I am principal at Silvassa. ओके ओके, Where you are principal? Silvassa, दादरा and नगर हवेली। सिलवासा, ओके ओके। सिलवासा में है, ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, विजय कामले जी, हाँ, या नेक्स्ट। सर जय भीम सर्वप्रथम सर्वांना, हाँ, खास करून नागलाईव सरांना आणि त्यानंतर जागेश सर, आणि मला वाटतं आज पार्टिसिपंट मध्ये आपले बर्वे साहेब पण आहेत, त्यांनाही माझा जय भीम। जय भीम, जय भीम। हाँ, बर्वे साहेब आहेत। त्यांना बघितलं मी। बनतेजी पण आहेत, वंदा मी बनतेजी। ऍक्च्युली मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की बाबासाहेबांना मी मराठीत बोलत चालेल ना? हाँ, बोला बोला बोला, चलेगा। बाबासाहेबांना आपण अर्थतज्ञ म्हणून मुवमेंट मध्ये कधी दाखवणार आहोत? कारण कसं होतंय की बाबासाहेबांचं अर्थतज्ञ म्हणून जे रूप आहे ते मुवमेंटने तसं स्वीकारलं नाहीये। जास्त काही ठराविक संघटना ज्या आहेत त्याच त्याच्या अर्थसंकल्प वगैरे असेल त्याच्यावरती आपलं मत मांडत असतात वर्षभर, परंतु असं कंटिन्युअसली असं आमच्या मुवमेंट मध्ये असं कुठे दिसत नाही। त्याबद्दल जर तुम्ही काय सांगू शकलात तर बरं होईल। विजय, आपका सवाल मुझे समझा। बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर वाज इकोनॉमिस्ट। we know his degrees, MSc, PhD, MSc, DSc, all the degree were in economics. He wrote some important books on economy, particular the problem of rupee. बाबा साहब का अर्थशास्त्र पर काफी लिखा हुआ, वो मूलतः अर्थशास्त्री थे, और इसलिए बाबा साहब का जो अर्थशास्त्री के रूप में अलग अलग विश्वविद्यालय में उसका भी उनके विचारों का समावेश या उनके विचारों का समावेश अलग अलग विश्वविद्यालय में हुआ है। और हम जब कभी बोलते चर्चा होती तो उस पर चर्चा, मुझे विजय जी मुझे लगता है कि हर जगह तो चर्चा होती है, क्योंकि उन्होंने जो सोशल स्टेट माइनॉरिटी जो है, और उसके अलावा फिर उसमें जो स्टेट सोशलिज्म है, उसमें तो उसके आर्थिक विचार ही है। यानी बाबा साहब ये समाजशास्त्री, राज्यशास्त्री या विधि तज्ञ तो थे, लेकिन वो मूलतः जो है वो अर्थशास्त्री, और उनका काफी योगदान अर्थशास्त्र के विषय में है। और अभी लोग उनका योगदान मानने लगे कि बाबा साहब का अर्थशास्त्र के रूप में जो योगदान है वो केवल भारतीय स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर पर उनका जो योगदान है वो योगदान लोग मानते हैं, और उस पर चर्चा, अलग अलग चर्चा करना या चर्चा सत्र आयोजित करना आवश्यक है ताकि लोगों को तक ये बात जाए। जी 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 जी, विजय भाई, हाँ, या नहीं, साहब सर ने जो बात कही है ये तो हमारा काम है एक्चुअली, ठीक है ना। वो बाबा साहब का काम तो हमको ही करना पड़ेगा। जो नहीं, लेकिन सर समाज में कुछ कम संगठन है जो इस बारे में गौर कर, नहीं, बात सही है। एक्चुअली कैसा है कि फॉलोअर्स है तो हमें उस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। उसमें से एक मैं ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर एमएल काशारी साहब है, उनकी एक किताब है इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, वो आप देख लीजिए अगर कहीं मिलती है आपको तो, हाँ, उसको थोड़ा पढ़िएगा तो उसमें काफी बाबा साहब के अर्थशास्त्रीय जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनके थॉट्स थे, उसमें कासारी साहब ने बहुत अच्छे से उसमें भी समझाया है, ठीक है ना। वो भी आप, ये भी आप